We'll start our proceedings with a very basic case. ये केस सबको नजर आ रहा है जी? सब पढ़ पा रहे हैं? So Bilal, who is a 3-year-old, is very irritable when his father brought him to a doctor. आप में से किसी एक के क्लिनिक पर आया या आप में से किसी एक कोई अगर हॉस्पिटल में बैठा हुआ है तो उसके ओपीडी के अंदर आया और जिस तरह से वालिदैन परेशान होते हैं काफी परेशान था. When you probed the history, you came to know that he had his routine immunization done with his pediatrician a day before. He got vaccinated. Shot लगी उसको और उसके बाद irritability के साथ आया. On examination, he had a fever of 101 degree Fahrenheit and some sort of frontal bossing. And point number 3 that was noteworthy was no other significant problem. So throat was clear, there was no focus of infection, abdomen was no tenderness, anything. So what do you think would be a diagnosis over here? So post-vaccination fever could be a concomitant infection, and post-vaccination fever pointing towards might be a vitamin D deficiency in the form of rickets because of the finding of frontal bossing. Frontal bossing वैसे normal भी हो सकती है, फिर आगे चल के इसको देखते हैं क्या. So now let us take these two problems one by one. So first of all, we're going to talk about what exactly fever is and what is its prevalence. So it is said that 19 to 30% of the encounters in an OPD are based upon any sort of fever, could be infective, could be non-infective, and 70% of preschool children annually suffer from fever. It's the most common symptom. Fever is not a diagnosis, it is a symptom, mind it, and it points towards a diagnosis. So fever is a symptom और उसको फिर आगे हम डील कैसे करेंगे वो सीरियसली. 20 to 40% of the parents report to the doctor with this presenting complaint, and fever might be associated with anything overt, यानी कि आपके सामने कोई फोकस आ भी सकता है और बाज़ का fever could be without a focus as well. जिस तरह उन्होंने बताया could be a hidden bacterial infection. ठीक है, आप भी ठीक थे, आप भी ठीक हो सकते हैं. So this is up to the clinicians to sort out the things कि क्या मामला है. Okay. A child presenting with pain and fever can be a source of distress for any parent. बच्चे से अगर फैमिली में जाए तो डेफिनेटली एंजाइटी होती है. अगर मेरा बच्चा बीमार है तो मैं तो जब तक वो ठीक नहीं होगा तो तसब्जुब में रहूंगा कि इसको कैसे ठीक किया जाए. So एक बच्चा बीमार होता है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है. तो दैट्स व्हाई फीवर मोस्ट कॉमन सिम्टम, और उस वजह से अगर कोई बीमार है, उस वजह से कोई डिस्ट्रेस्ड है, तो वी हैव टू डील विद द होल फैमिली, होल कंटिन्यूम ऑफ द प्रॉब्लम. ये ब्रेकअप है, आई एम श्योर एवरीबॉडी वुड नो. इसमें सिर्फ एक चीज हाईलाइट करनी है, सिंस वी आर इन द ट्रॉपिकल रीजन और लाहौर में तो इतना ज्यादा नहीं है, मगर आउटसाइड लाहौर इफ यू ट्रैवल, मलेरिया इज वन ऑफ द कॉमन कॉजेस. खास तौर पे जो फ्लड्स गुजरे हैं पीछे, और इसमें लोअर पंजाब एंड अपर सिंध के अंदर जो फ्लड का एक कह लीजिए आर्टिफिशियल, एक नेचुरल आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज फॉर्म हो गई, तो वहां पे मलेरिया की आउटब्रेक सबसे कॉमन थी. तो सिंस दिस इज अ वेरी रिलेटिवली न्यूअर डेटा जो कि कंपाइल किया गया अप्रैल के अंदर, तो इसमें मलेरिया का कंपोनेंट जरा ज्यादा आ गया. और फिर उसके बाद मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. सेकंड मोस्ट कॉमन इज gastroenteritis, very good, and in females second most common is urinary tract infection. So ये 3-4 आपके मेन कॉमन, और उसके बाद ये सारे अगर आप रिव्यू करें तो could be anything. What are the symptoms accompanying fever? फीवर की एक हिस्ट्री के 7 से 8 पॉइंट्स होते हैं, उसमें आप यही चीजें कवर करते हैं. Could be associated with chills and fever. Could be associated with sweating. Sweating can be with the fever and sweating can be after the fever as well. Muscle aches, body aches and pains, very common symptom.
लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने का जी नहीं करता, बच्चे वैसे पिकी होते हैं, इसके बाद बिल्कुल ही छोड़ जाते हैं। हेडेक्स, specifically if you are dealing with upper respiratory tract infections or associated headaches with sinusitis can be a symptom. Generalized body weakness, बच्चा एक तरफ पड़ा रहता है, ठीक है, उसका endurance जो खेल की है वो कम हो जाती है। And dehydration, because the moment body temperature rises, the insensible heat losses become greater than normal and result into a relative dehydrated state. Now, how to manage this symptom? So, पहला रूल क्या होगा सिम्टम को मैनेज करने का? पहला रूल ये होगा कि इट इज अ पॉइंटर एंड लुक फॉर अ डिजीज। अगर कोई डिजीज नहीं मिली तो इट कुड बी एंड वैक्सीनेटेड एसोसिएटेड फीवर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो 3-4 चेकलिस्ट है वो जरा देख लीजिएगा। इसको डील करना क्यों जरूरी है? व्हाई मैनेजमेंट ऑफ फीवर इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज फीवर सिर्फ एक सिम्टम है, मगर वो कंटिन्यू क्या क्या कॉज करता है? इट मिनिमाइजेस डिस्कम्फर्ट होती है, तो फीवर को ट्रीट करना इसका मतलब है यू आर मिनिमाइजिंग द डिस्कम्फर्ट ऑफ द पेशेंट। नंबर 2, यू हैव टू कंट्रोल द फीवर, क्योंकि टेम्परेचर जब बहुत हाई चला जाता है तो फिर आपके तमाम बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं वो बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तो उसको काम डाउन करने के लिए। फिर वेरी हाई फीवर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या 107 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब ऊपर जाता है तो फेब्राइल कन्वर्जन्स होती हैं। In pediatric population, most of the people, all of you, might be somewhere around in your life could have encountered febrile fits. Now, febrile convulsions are different from febrile fits. Febrile convulsions are due to hyperpyrexia. Like whenever the temperature rises to a certain degree, a very high level, the body comes into a catatonic state and it starts to convulse. Whereas in febrile fits, usually low-grade fevers can lead to that, and the underlying correctable cause in that is usually iron deficiency. So whatever you choose, if it is a anti-inflammatory drug, it's going to treat the fever as well as the pain and the discomfort as well. Most common चीजें ये होती हैं, फिर swelling कहीं हो तो वहाँ वो भी treat हो जाती है. Most common in pediatric practice, because viral illnesses are very common, so we are trained to give first line paracetamol. But in certain cases, when there are no viral illnesses, you can safely give maybe ibuprofen, maybe other NSAIDs, maybe mefenamic acid as well. But there is a catch. You have to avoid giving aspirin as an antipyretic or as an NSAID to any pediatric population, because that may give rise to Reye's syndrome. What are the guidelines? Definitely, if there's a certain problem, you have to manage those. You have to come up with certain guidelines, and guidelines do exist. What does WHO suggest? किसी ज़माने में जब Reye's syndrome नहीं बना था, नहीं establish हुआ था, तो acetyl salicylic acid was the first choice. इसकी suppository भी दी जाती थी और इसका जो है ओरल फॉर्मुलेशन भी दी जाती थी, बट ओवर द कोर्स पीडियाट्रिक में फर्स्ट स्टेप को ऑब्सोलीट कर दिया गया बेस्ड ऑन रिसर्च. सो ibuprofen can be given and paracetamol definitely can be given. So ये 3-4 जो आपके पास आप कह लीजिए आर्सेनल के अंदर आपके पास गन्स हैं, हाउ टू यूज देम इफेक्टिवली, तीनों का कंपैरिजन क्या है, कौन सी चीज बेनिफिशियल है, कौन सी चीज कहां देनी है, तो उस पर जरा थोड़ी सी बेसिक सी बात कर लेते हैं. नेक्स्ट थिंग, सो whoever has practiced pediatrics, whoever is trained in pediatrics, BNF pediatric formulation उसके या तो पॉकेट में हुआ करती थी, और आजकल जब हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तो पॉकेट बुक्स थी, अब मोबाइल्स में आ गई हुई है, PDF फॉर्मेट में आ गई हुई है, एवरीबॉडी कैन गेट दैट फ्रॉम द क्लिक ऑफ द कह लीजिए फिंगर, आप उसको बड़े आराम से एक्सेस कर सकते हैं. सो आइबुप्रोफेन स्टार्टिंग, इस हम एस्पिरिन को जरा छोड़ देते हैं तो आइबुप्रोफेन से स्टार्ट लेते हैं. माइल्ड टू मॉडरेट पेन में आप दे सकते हैं, दिस इज एन इंडिकेशन, बट दिस इज व्हाट BNF सजेस्ट. एंड पेन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, इन दोनों के अंदर आप दे सकते हैं, ठीक है.
देना क्या है, डोज क्या है, 50 मिलीग्राम है, up to 3 times a day आप दे सकते हैं, मगर पीडियाट्रिक फॉर्मुलेशन में आपने ये देखना है कि 20 to 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे देना है आपने, ठीक है। ये पर डे की डोज है, यानी कि ये अगर आप 3 में डिवाइड करें, सो इट शुड बी नॉट मोर देन 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज 8 hourly. So this is the maximum dose of ibuprofen, and when given with meals it is better tolerated and does not cause any gastritis. Next. Okay. So ये ग्राफ बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मगर इसमें सिर्फ देखने वाली बात ये है कि प्लेसिबो इज येलो. There was a comparison given पेन एंड फीवर के लिए, इसी तरह का एक केस था, तो उसमें कोई ओवर्ट या कोई आप कह लीजिए कोई प्रोमिनेंट इन्फेक्शन नहीं थी, तो उसको जब सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया गया तो प्लेसिबो का तो बड़ा फ्लैट कर्व आया. तो बाकी जो है ब्लू के अंदर आपका एस्पिरिन है, ठीक है. इसको सिर्फ रीड ऐसे करना है कि जितना ये कर्व नीचे आएगा उतनी ज्यादा इफेक्टिव ड्रग रही, उतना सिम्टम रिलीफ उसने किया. तो सबसे नीचे आ गया आपका रेड. तो कंपैरिजन अगर किया जाए एस्पिरिन का, पैरासीटामोल का, आइबुप्रोफेन का, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इन पुरानी स्टडी है 1989 से ही ये इन्होंने वो बताया. तो आइबुप्रोफेन वाज फाउंड फॉर कंट्रोलिंग द सिम्पटम्स. नेक्स्ट. ओके, मॉलिक्यूल की बात हो गई. व्हाट अबाउट द डोज? सो this curve gives you a comparative analysis of not only the 3 drugs but also their comparative doses as well. Ibuprofen when given 5 mg per kg as compared to ibuprofen 10 mg per kg as compared to paracetamol 10 mg per kg. So, which drug was found more superior? Red line shows you 4-hour disease free, 4-hour symptom free. The yellow or magenta shows you, yellow or the mustard shows you 6 hour, and subsequently blue shows you 8 hour symptom relief. So, when ibuprofen was given at 10 mg per kg up to 83% in the first 4 hours, the symptoms got relieved, as compared to when the same dose 10 mg per kg of paracetamol was given in the first 4 hours, and subsequently after that the relief of symptoms was only up to 60% maximum, and then after that it never compared to the results obtained by ibuprofen. So what exactly does ibuprofen do? Number one, anti-inflammatory. We all know that. It is antipyretic as well, relieves the fever as well, and relieves the pain as well. Next. Okay. So, whenever you are prescribing certain medication, you need to give their frequency as well. So, usually when paracetamol is given, it is given 6 hourly. Whenever you advise, specifically in the first 2-3 days of infection or first 2-3 days of appearance of the symptom, you would give that dose at the interval of 6 hours. And the maximum interval that you give when you prescribe ibuprofen is 8 hours. Ibuprofen is never given 6 hourly. Because of what exactly is the reason? The reason is this slide. Because paracetamol provides you symptom-free interval of 6 hours, and then its half-life finishes, and then its therapeutic level comes down, and the symptom might resurface. But as compared to ibuprofen, single dose gives you a relief of 8 hours. So इसकी एक और इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि एक 7 to 8 hours की एक क्वाइट स्लीप के लिए अगर एक सिंगल डोज ब्रूफिन की दे दी जाए तो वो आपका प्रॉपर एक फीवर फ्री और पेन फ्री नाइट गुजारता बच्चा और सो सकता है. बट व्हेन इट कम्स टू पैरासीटामोल, और अगर थोड़ा सा पेन एंड फीवर थोड़ा सा ज़रा सवेयर है, तो यू माइट हैव टू रिपीट द डोज आफ्टर 6 hours. नेक्स्ट. Next key table. Okay. So over here is a meta-analysis
it was a combination of studies where 32,469 children were enrolled up to the age of 18 years and 36 clinical trials were included. And what was the conclusion? Ibuprofen, paracetamol and Previvo have similar tolerability and safety profiles in terms of gastrointestinal symptoms, asthma and renal adverse effects when given in the correct dose. So अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आइबुप्रोफेन हम बच्चों को इसलिए नहीं देते क्योंकि अक्सर क्लिनिशियंस कहते हैं गैस्ट्राइटिस बहुत कॉज करता है, तो डेफिनेटली अगर आप 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज से उसको दे रहे होंगे तो डेफिनेटली कॉज करेगा। बट 10 मिलीग्राम पर केजी पे अगर आप लिमिट करके उसको 8 आवर के इंटरवल से देंगे, 6 आवर का इंटरवल नहीं देंगे उसका, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रोफाइल आपकी बेहतर हो जाएगी। एंड प्लस अगर विद मील्स देंगे तो मजीद एक उसका एडिशनल कह लीजिएगा कि ये सिम्टम्स टॉलरेबिलिटी अच्छी होगी। फिर अमूमी तौर पे कहा जाता है कि NSAIDs रीनल जो आपका फेलियर है उसकी लीडिंग कॉज है। यस, ओवर द काउंटर यूज, नॉट द प्रिस्क्रिप्शन यूज, over the counter use of NSAIDs is the leading cause of renal failure in our population, और वो स्टार्ट हो जाता है पीडियाट्रिक एज ग्रुप से। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बच्चा रो रहा था, मैंने कहा ब्रूफिन पिला दो, नो दिस इज नॉट एन इंडिकेशन। थोड़ा सा बच्चा जरा क्रैंकी हो रहा था, मैंने कहा शायद उसको दर्द हो रही है, तो ये कहते हैं नहीं। सो करेक्ट वे ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज दैट कि जब आप प्रिस्क्राइब करें तो साथ आप उनको एजुकेट भी करें कि whenever you feel your baby is distressed, having any sort of fever or any sort of pain or is restless due to any condition, just give the dose once and come to me. Come to the hospital in the morning or come to the my clinic in the evening. But आप उनको इतना एजुकेट कीजिए कि 1 या 2 डोजेस से ज्यादा ना, तो उसमें रिलेटिवली चांसेस ये होंगे कि वो ओवरडोज में नहीं देंगे और जो एक वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रोफाइल है उसकी, जो रीनल प्रोफाइल है बच्चे की, वो हम सेफगार्ड कर पाएंगे। नेक्स्ट कीजिएगा। ऑलराइट जी, ibuprofen in certain studies was better tolerated if given within the doses, and that study was published in 1999 over here. So point of the matter, the fact of the matter is that once used in a rational form, no medication or no dose is would be causing any sort of adverse effects. Next कीजिएगा। Okay, so with this we conclude the symptomatic management of fever in a pediatric patient, and now we come to the next bit जिसका लीड हमें मिला था फ्रंटल बॉसिंग के साथ। फ्रंटल बॉसिंग जब क्लिनिशियन ने या आपके क्लिनिक पे वो आया था, जब आपने देखी तो उसको जब आपने फर्दर एवेलुएट किया तो आपको बाकी फाइंडिंग्स भी मिली। अब रिकेट्स की बाकी फाइंडिंग्स इन अ 3-year-old क्या हो सकती है? रिस्ट वाइडनिंग होगी, शाबाश, वेरी गुड, और हैरिसन सल्कस आएगा, ठीक है। और जिस तरह से रिस्ट वाइडनिंग होती है बहुत ओवर्ट केसेस के अंदर या बहुत क्रॉनिक केसेस के अंदर या डेफिशिएंसी सवेयर हो, एंकल वाइडनिंग भी आ जाती है आपकी, ठीक है। तो ये 3-4 फाइंडिंग्स अगर क्लिनिकली आ रही है और बच्चा आपको स्लाइड सा पेल लग रहा है तो मोर और लेस he or she is suffering from malnutrition and yes from the florid rickets. Florid rickets का मतलब ये है कि फाइंडिंग्स उसकी सारी क्लिनिकल मौजूद है। नेक्स्ट, ओके, सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, व्हाई आर दीज इंपॉर्टेंट? जिंदा रहने के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है फॉर द बेसिक protein, energy, management of the body, and to carry on the internal processes of the body, your micronutrients are very important. So उसमें क्या क्या processes हो सकती हैं कि अगर वो चले जाए तो आपकी eyesight प्रॉपर काम नहीं करेगी, ठीक है। प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ रेट आएगा अग्रिम प्रोजेनी का। इसके अलावा स्टंटिंग हो जाएगी, अंडरवेट हो जाएगा, ठीक है, और वेस्टिंग हो सकती है। और क्या हो सकता है? कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिसमें कॉग्निटिव आपकी एबिलिटीज भी कम हो जाती है, खास तौर पर मेमोरी। तो वो कौन कौन से विटामिन्स हैं और कौन कौन से, वो हम उस तरफ नहीं जाते, इट्स अ वेरी
big Pandora box. We will focus on 1 to 2 और most probably एक ही पे फोकस करेंगे आज के दिन के लिए, that is vitamin D. नेक्स्ट कीजिएगा जी. So disease burden क्या है कि 2 billion people worldwide including pediatric and adult population are suffering from micronutrient deficiency. हम वेट में तो बहुत अच्छे हैं, हम हाइट में भी बहुत अच्छे हैं, मगर हम जब अपना ब्लड प्रोफाइल करवाते हैं विटामिन डी लेवल्स के लिए तो वो ऑलमोस्ट 60 to 70% का सब नॉर्मल आता है. बल्कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मैंने अपने वार्ड में एक थोड़ा सा विद फार्मास्यूटिकल कंपनी एक सर्वे करवाया था. 6.5 फुट का एक हमारा पीजी था और बड़ा एक्टिव, बड़ा जबरदस्त. आप बिलीव करेंगे उसका विटामिन डी लेवल कितना आया होगा? विटामिन डी लेवल्स का आइडिया है ना कि कितने कितने होते हैं? कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है. 30 से बिलो हम डेफिशिएंसी कहते हैं. मैं कट ऑफ होता उसका सिर्फ 3 लेवल है, ओनली 3. तो हमारी जो कंसल्टेंट उस टाइम पे थी उन्होंने मजाक किया, तुम जिंदा कैसे हो 3 लेवल के साथ घूम फिर रहे हो और इतना चिल्ड्रन अस्पताल में काम कर रहे हो. सो दिस दैट वाज एन आई ओपनर कि हम अपफ्रंट बड़े फिट लग रहे होते हैं मगर इंटरनली हमारा क्या चल रहा है. तो इसीलिए रिकमेंडेड ये है कि पीडियाट्रिक में तो आप पिक कर लेते हैं थ्रू द फाइंडिंग्स, मगर एडल्ट्स के अंदर रूटीन ब्लड वर्क कम से कम एनुअली जरूर करवा लें. नेक्स्ट. ओके, सो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जी? पिछला कीजिएगा. ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन बी उसका सारा कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी एंड फॉलिक एसिड, और फैट सॉल्युबल में ए डी ई के. नेक्स्ट जी, पीछे कीजिएगा एक स्लाइड. थैंक यू. ओके, हाई रिस्क ग्रुप्स आपके सामने 3 से 4. वी विल नॉट गो इन द डिटेल्स. ये सबको पता है. जो डिस्प्लेस्ड है, घर में नहीं रह रहा, उसको हो सकता है, मॉम को हो सकता है, बच्चों को हो सकता है. नेक्स्ट. अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान ढूंढिए कहां पर है. यहाँ पे ये जी, ठीक है. ओके, अब पाकिस्तान के अंदर अगरचे आयरन डेफिशिएंसी एंडेमिक है, मगर ये जो सर्वे किया गया था इट वाज डन इन 2023 एंड इट इज वैलिड अप टिल 2024. सो इसमें दिस इज बेस्ड ऑन द नेशनल न्यूट्रिशनल सर्वे जो कि 2018 में आया था और 2019 में वो पब्लिश हुआ. बिल्कुल अप नॉर्थ आपका थोड़ा सा येलो पोर्शन आ रहा है विच शोज आयरन डेफिशिएंसी. फिर विटामिन ए एंड आयरन डेफिशिएंसी कंबाइंड हमारे पाकिस्तान के अंदर पूरा मुल्क भरा पड़ा. एंड व्हेन इट कम्स टू आयोडीन, विटामिन ए एंड आयरन डेफिशिएंसी, तो ये थोड़ा सा केपीके का एरिया और कश्मीर का एरिया ये इसमें आता है. सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मल्टीपल डेफिशिएंसीज के साथ हम लोग जी रहे हैं. और दिस वाज बेसिकली ये रिपोर्ट जो शाया की थी उसके बेस करके यूएसएड ने की थी. नेक्स्ट. ओके, ये स्टैटिस्टिक्स आप सबको पता है. 1/3 इज है स्टंटेड है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन अंडरवेट है, 60% के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी है. ये सारी चीजें रेपिटेशन है. नेक्स्ट कीजिएगा. ओके, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर जो रेयर चीजें जिन पे बात नहीं की जाती उसमें है जी, एक है लाइसिन. लाइसिन क्या है जी? तो बता सकता क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है मगर केमिकल नेचर क्या है इसकी? अमाइनो एसिड. एक्सीलेंट. सो लाइसिन के मुतालिक बड़े आप कह लीजिए कि डुअल आपके वो फीडबैक आता है एक्सपर्ट्स का. कुछ कहते हैं बहुत बेनिफिशियल है, कुछ कहता है नहीं लॉन्ग टर्म में जाके ग्रोथ रिटार्डेशन करवाता है. बट इफ यूज्ड प्रॉपर्ली क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं लाइसिन के? तो इट हेल्प्स द बॉडी टू एब्सॉर्ब कैल्शियम, आयरन एंड जिंक which is important for vitamin D and immune metabolism. Then promoting the collagen growth, helping produce enzymes, antibodies and hormones, and yes, modulating the immune system as well. So immune booster के तौर पे अगर आप किसी को कुछ देना प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं तो लाइसिन की प्रिपरेशंस मार्केट में अवेलेबल है. यू कैन प्रिस्क्राइब देम फॉर अ शॉर्टर पीरियड, 2 to 3 months के लिए दे देंगे. और लाइफ लॉन्ग अगर इस्तेमाल नहीं करवाएंगे तो वो वाले ओवर्ट इफेक्ट्स जो कि कहे जाते हैं बड़े ड्रास्टिक हैं और स्टंटिंग हो जाती है, ये हो जाता है, 3 months में कोई इतना डिफरेंस नहीं आता. नेक्स्ट.
द मेन जो बात आज की है विटामिन डी। विटामिन डी को कहा जाता है इट्स नो मोर अ विटामिन, इट्स अ हार्मोन। अब व्हाई इज इट अ हार्मोन? बिकॉज विटामिन्स आपके वाइटल कुछ मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के अलावा कुछ सिस्टम्स को भी कंट्रोल कर रहा है। और सिस्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं? जिसमें इम्यून सिस्टम बहुत कॉमन है। और कोई भी विटामिन आपके इम्यूनिटी के ऊपर इतना असरअंदाज नहीं होता जितना विटामिन डी होती है। बल्कि recently there are studies that the risk of atherosclerosis in an adult usually जब retrospectively उनका विटामिन डी लेवल करवाया गया या उनकी फैमिलीज का करवाया गया तो वो आम पॉपुलेशन से सब ऑप्टिमली कम था। तो विटामिन डी जब कम है तो इसका मतलब है कि ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो गया। ब्लड में जब कैल्शियम ज्यादा हो गया तो जो आपका प्लेटलेट प्लग बना करता वो कैल्सिफाइड होने लग गया और एथेरोस्क्लेरोसिस की एडवांस स्टेज हो गई। तो विटामिन डी आपको बाजुकात इस्कीमिक हार्ट डिजीज से भी बचा जाता है अगर वो ऑप्टिमाइज लेवल हो। नेक्स्ट, प्रेवलेंस ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी कितनी है जी? 60%। 2019 में एक नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुआ, आगा खान यूनिवर्सिटी ने किया अलॉन्ग विद सर्टेन और पार्टनर्स। सो उन्होंने असर्टेन किया तकरीबन कोई 2 से 2.5 लाख रैंडम सैंपल्स चारों पांचों प्रोविंसेस से हमारे लिए गए। उनमें उन्होंने आयरन देखा, विटामिन डी देखा, जिंक लेवल्स देखे, इसके अलावा ग्रोथ पैरामीटर्स देखे। तो जो लेटेस्ट आपको जितने भी स्टैटिस्टिक्स आफ्टर दैट मिलते हैं बेस्ड ऑन ये वही नेशनल न्यूट्रिशनल सर्वे है और उसके मुताबिक हमारी पॉपुलेशन बच्चे हो या बड़े हो 60% विटामिन डी डेफिशिएंट है। और इनसफिशिएंट लेवल्स जो है यानी 30 से लेके अप्रॉक्सीमेटली तो 45-50 तक वो 15.4%। सो ओवरऑल अगर लगा लिया जाए तो ये डेफिशिएंसी 70% के करीब चली जाती है, बल्कि उससे भी ज्यादा 75% ऑफ द पॉपुलेशन। उसकी रीजन हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल है। आई डोंट रिमेंबर लास्ट मैं कब धूप में खड़ा हुआ था या मैंने कोई क्रिकेट मैच खेला था या कोई इस तरह का कोई, आई डोंट रिमेंबर, बड़ी पुरानी बात है। सो हम जब भी गाड़ियों में भी जाएंगे हम वो शीशे रोल अप करके फुल एसी लगा के स्क्रीन्स लगा के हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना दे हैव कह लीजिए कि क्यूमुलेटिवली अफेक्टेड आवर विटामिन डी लेवल्स। फिर उसमें हमारे जेनेटिक्स, वी आर सॉर्ट ऑफ कह लीजिए कि थोड़ा सा डार्क लोग हैं, तो डार्क लोगों के अंदर विटामिन डी स्किन सिंथेसिस जरा थोड़ा सा कम होता है, उनको ज्यादा एक्सपोजर चाहिए होता है एज कंपेयर टू द फेयर स्किन पीपल। जी नेक्स्ट, ओके जी। सो विटामिन डी क्या क्या करवाता है पीडियाट्रिक के अंदर ये हम सब जानते हैं, तो आगे चलेंगे। ये सिम्टम्स ही हैं, ये लेवल्स हैं जी। लेस देन 30, 30 to 50, मोर देन 50 एंड मोर देन 125। और ये आगे उसकी इंटरप्रिटेशन है। टॉक्सिसिटी कब कहेंगे हम? विटामिन डी की टॉक्सिसिटी, क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन है। एवरी फैट सॉल्युबल विटामिन हैज द कैपेबिलिटी ऑफ what you can say going to toxic levels in the body if not modulated with proper blood flow। तो क्लिनिकली भी हमने प्रैक्टिस यूजुअली देखी है कि विटामिन डी चल रहा होता है और कोई लेवल करवा रहा होता है उसका। सो एक खास हद तक तो चले समझ में आता है शॉर्ट टर्म में, मगर लॉन्गर टर्म में जब आप चले जाते हैं 2 to 3 मंथ से बियॉन्ड, यू डेफिनेटली नीड अ सिंगल लेवल ऑफ विटामिन डी लेवल ताकि आप अपनी ट्रीटमेंट को मॉड्यूलेट कर पाए। ओके, रिस्क फैक्टर्स पे मैंने ब्रीफली आपको बता दिया था, ये उसी की एलैबोरेटेड वर्जन है कि क्या है। विटामिन डी डेफिशिएंट मदर होगी तो बेबीज भी विटामिन डी डेफिशिएंट होंगे। बल्कि विटामिन डी से रिलेटेड एक और स्टडी ज़हन में आई है, दिस वाज पब्लिश्ड इन लैंसेट सम 3 to 4 years ago। एग्जैक्टली ये जो है उसका पब्लिशिंग मंथ मुझे याद नहीं है, अभी यहाँ पे कोटेड नहीं है। सो उसके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंट मदर्स और अगर फैमिली में एज़मा है उनके, सो ट्रांसफर ऑफ दैट एज़मा इन अ बेबी इज प्रिवेंटेड अगर आप उस मदर के विटामिन डी लेवल्स को ऑप्टिमाइज कर लें। सो व्हेन इट कम्स टू इम्यून सिस्टम एंड एलर्जी, इट इज समथिंग टू डू विद दैट, मगर अभी इसमें फर्दर रिसर्च रिक्वायर्ड है कि एग्जैक्टली किस चीज के तहत उसको मॉड्यूलेट करता है। सो प्रोजेनी के अंदर, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री में अगर एज़मा नहीं है तो आप बच्चे में एज़मा डायग्नोज ही नहीं कर सकते एज पर द लेटेस्ट एज़मा डेफिनेशन। सो
vertical transmission of that genetic disorder can be prevented. एस्मा का तो प्रूव हो गया, आई डोंट नो अबाउट फर्दर डिजीजेस, मगर अगर विटामिन डी लेवल आप मदर्स का बिफोर कंसेप्शन या फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ऑप्टिमाइज कर दें तो द रिस्क ऑफ द प्रोजेनी हैविंग एस्मा इज डिक्लाइनिंग. नेक्स्ट. ओके जी. सो मैटरनल विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं ड्यूरिंग लैक्टेशन ऑन द विटामिन डी स्टेटस ऑफ द ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स. अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर विटामिन डी होता है, कम होता है कि नहीं होता? कम होता है. सो दैट्स व्हाई यूनिवर्सली हम हर बेबी को जो ब्रेस्ट फेड होता है या इवन अगर 1 लीटर ऑफ आप कह लीजिए कि फोर्टिफाइड इन्फेंट फॉर्मूला से कम ले रहा है तो उसको हम विटामिन डी जरूर देते हैं सप्लीमेंट के तौर पर. वो क्या है जी? लैक्टेटिंग मदर शुड आल्सो बी सप्लीमेंटेड. अब यहां पे हम जरा थोड़ा सा मदर्स की तरफ आ जाते हैं तो उसमें क्या है जी? लैक्टेटिंग मदर शुड आल्सो बी सप्लीमेंटेड 400 यूनिट्स पर डे और उनका लेवल आपने 25 to 78 के बीच में रखना है ऑप्टिमली यूजुअली. ठीक है. 25 यहाँ पे इसलिए मेंशन है कि कुछ आपके 30 से बिलो को लेते हैं, कुछ 25 से बिलो को डेफिशिएंसी देते हैं, तो उस हवाले से तो आप 30 ही रखिए ऑन द सेफर साइड. फिर infants who are exclusively breastfed but who do not receive supplemental vitamin D are at risk of developing vitamin D deficiency rickets. And finally, consumption of human milk alone does not ordinarily enable infants to meet their nutritional needs of vitamin D. Next thing. Guidelines क्या कहती हैं? Next. To avoid the vitamin D deficiency, every infant should be given 400 international units per day. 1 drop of RDI formulation of vitamin D. मतलब स्ट्रॉस थेरेपी फॉर्मुलेशंस भी अवेलेबल हैं जो RDI वाली हैं 400 वाली, वो आप दें. पॉइंट नंबर 2 जो मैंने बात एम्फसाइज की, अगर 1 लीटर ऑफ इन्फेंट फॉर्मूला एक बेबी नहीं लेता तो उसको एडिक्वेट सप्लीमेंटेशन नहीं जा रही. 1 liter per day of infant formula जो कि fortified है with vitamin D. If the baby is taking that, you can discontinue that 400 international units per day of vitamin D drops. And what are the recommendations in babies? Mothers में तो हमने देखा था 30 to 75 में हमने रखना है, and children में it is more than 50 but less than 100. 100 से ऊपर हम टॉक्सिसिटी को लेबल कर देते हैं और 120 से ऊपर हम डेफिनेटली उसको वेरी हाई टॉक्सिक लेवल्स लेबल कर देते हैं, फिर उसका टॉक्सिसिटी का इलाज शुरू हो जाता है. नेक्स्ट थिंग. ओके. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज वन इंस्टीट्यूट. देयर इज अनदर इंस्टीट्यूट नोन एज एस्पागार. नाम सुना होगा आपने, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी एंड न्यूट्रिशन. सो उन्होंने भी यही रिकमेंड किया, WHO ने तो कह दिया था, उन्होंने भी यही रिकमेंड किया कि उनके इन्फेंट्स जो कि सपोजिटली वेल फेड है, सपोजिटली उनके पास माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं है, वो भी अपने बच्चों को करते हैं, तो हमने तो डेफिनेटली करना है. सो टेक होम मैसेज ये है कि आज के बाद कोई भी बच्चा आपके फैमिली सर्कल के अंदर अगर आ रहा है और आपको लग रहा है कि वो इन्फेंट है, 1 लीटर से कम इन्फेंट फॉर्मूला लेता है, तो उनके मदर्स के साथ बैठ के कम से कम ये चीज जरूर एडवोकेट करें कि प्रिवेंटिव डोज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी और विटामिन डी ड्रॉप्स जो है वो आप उनको पिलवाने शुरू कर दो. नेक्स्ट. ओके, पीछे आइएगा एक स्लाइड. सो आज की फाइनल स्लाइड, हम अपनी आखिरी मंजिल पे पहुंच गए. तो की नोट मैसेजेस जो आज की टॉक से आप लेके जाएंगे, उसमें नंबर 1, फीवर इज अ सिम्टम, और उसको एज पर द गाइडलाइंस अगर आप ट्रीट करेंगे तो ना सिर्फ आप सिम्टम्स पे कंट्रोल पा लेंगे, यू विल बी हैविंग अ हैप्पी फैमिली एज वेल. नंबर 2, ऑलवेज एम्फसाइज ऑन द बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट भी एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है मैं समझता हूँ, और पूरे दिन की इस पे एक वर्कशॉप होनी चाहिए कि बैलेंस डाइट बच्चे में क्या है, लंच के लिए लेके जाना है, उसको लंच के लिए क्या चीज बना के देनी है, उसको घर आएगा तो क्या देना है,
मदर्स बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या चीजें लें, जो फादर्स हैं वो बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या चीजें लें, जो डॉक्टर्स हैं, जो हाई स्ट्रेस वर्कर्स होते हैं उनकी बैलेंस डाइट क्या है, उसमें किस चीज को आपने हाईलाइट करना है, इंजीनियर्स जिनका सनलाइट एक्सपोजर बहुत ज्यादा, फील्ड वर्क ज्यादा, उनकी बैलेंस डाइट क्या है। तो एवरीथिंग इज कस्टमाइज्ड। सो ये सारी नॉलेज एज पर, अगर आप मोस्टली आप में से अगर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को डील कर रहे हैं, विच आई एम इन्फरिंग, तो आपको कम से कम एक पीडियाट्रिक बैलेंस डाइट का थोड़ा बहुत बेसिक्स पता होने चाहिए। देन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो नजर नहीं आते हैं। अमूमी तौर पे इन्फेंट्स में आपको तमाम चीजें मिल जाती हैं क्लिनिकली, मगर थोड़ा सा जरा 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर या 10 to 11 ईयर्स पे जाता है तो आपको कुछ चीजें हिडन भी मिल सकती हैं। आयरन, आयोडीन, विटामिन ए एंड जिंक, एंड डेफिनेटली विटामिन डी एज वेल, क्योंकि हमारा पाकिस्तान वो उस रेड जोन के अंदर था जिसमें तमाम चीजें, तीनों के तीनों विटामिन्स, चारों के चारों विटामिन्स डेफिशिएंट थे। देन appropriate feeding along with the fortification with supplements improves growth and development, improves the cognitive outcome and reduces risk of infection। अच्छा, cognitive का मैं दूसरी बार आपको बता दिया है, जो विटामिन कॉग्निशन को डील करता है, आप कह लीजिए कि एक सॉर्ट ऑफ आपके ब्रेन्स के अंदर इट वर्क्स एज अ मेमोरी बैंक, दैट इज आयरन। तो आयरन डिफिशिएंसी अगर किसी बच्चे को है तो वो अपना इंटेलेक्ट का पोटेंशियल अचीव ही नहीं कर पाता। सो आयरन डेफिशिएंट बंदा आईक्यू डेफिशिएंट हो जाता है अगर उसको ट्रीटमेंट लिया जाए। एंड देन टू प्रिवेंट रिकेट्स एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी, एवरीबडी, एवरी इन्फेंट और अ किड शुड बी गिवन 400 इंटरनेशनल यूनिट्स। ये सिंगल ड्रॉप बनता है जी, कुछ लोग कहते हैं कि 2 ड्रॉप्स, कुछ लोग कहते हैं थोड़ा सा 1 ईयर क्रॉस करे 3 ड्रॉप्स कर दे, चाहे नहीं। रिकमेंडेड डेली इनटेक जो है दैट इज 400 इंटरनेशनल यूनिट्स, सिंगल ड्रॉप पर डे। नेक्स्ट जी, बस विद दिस वी कंक्लूड दिस। और मेरा कांटेक्ट नंबर भी मौजूद है, मेरा ईमेल भी है, व्हाटएवर यू नीड टू आस्क, अगर अभी पूछना चाहे अभी पूछ लें, और अगर बाद में भी कोई चीज आफ्टर थॉट के तौर पे याद है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। मेरे ख्याल में सबका सवाल ये है कि खाना तैयार है, या तो सब क्लियर हो गया या सब क्लियर हो गया है, सब क्लियर। ऑलराइट जी, एंड फाइनल जो है वो ये है कि थैंक्स टू एबट वी गॉट अ चांस टू मीट। और एबट का जो मोटो है एबट लेबोरेटरीज का इज टू लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट। तो उसमें ये है कि बैलेंस डाइट लीजिए, अपने माइक्रो एंड मैक्रोस को भी आप अच्छे तरीके के साथ बैलेंस रखें और अपने फैमिली मेंबर्स का भी रखें। विद दिस मैसेज आई थैंक यू वेरी मच।